Okay, whether I'm audible or not, please. I'm audible? Yes. Okay, I got thumbs up. I'm audible. Okay, good evening. Yes, I'm audible. Okay, thank you so much. So we are about to start today's session. People are still joining, so wait for a minute. Okay, so finally I'm audible and I'm going to start, okay? Please thumbs up if you are listening me and my audio and video is clearly visible. Okay, thank you so much. Okay, got it, got it. So let's start. It's our third session of GK. Not GK. It's the third session of English, General English. So first of all, we are supposed to complete the yesterday's test sheet, whether you have completed or not. So this was the test given yesterday, and you are supposed to fill the correct article. So I'm sure you are ready with your answers. Let's try. Okay. I am from Winchester, Hampshire. Winchester is a city. Winchester is a city. ये होगा city in the United States. In the United Kingdom. Sorry, United Kingdom. I live in a town called. यहाँ पे कोई preposition नहीं होगा. Which is on the river Don. ठीक है. I live in a house. I live in a house in a quiet street. In a quiet street in the countryside. In the countryside. The street in the countryside, the street is called Hudson Street, and the house is more than 100-year old. I am English lecturer, so I am an English lecturer. I am a teacher. I am an English lecturer at a college near the center of the town. ठीक है. I like books. So I like books. So I like the books नहीं. I like books. यहाँ पे so many books है. So I like books. यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा. I like books, music and taking photographs. Again यहाँ पे कुछ नहीं आएगा. I usually have lunch at college. So I usually have lunch at college. बीच में भी कुछ नहीं आएगा. I usually have lunch at college. I usually go home. I usually go home. Again go to home हो सकता है, but यहाँ पे to का fill option नहीं है. A and the fill करना है, तो I usually go home. ठीक है. I usually go home by a car. I usually go home by car. ठीक है. I usually go home by car. आपको कुछ नहीं होगा. We have all kind of food in England. We have all kind of food in England. इन preposition है, तो preposition के बाद England लगाना जरूरी नहीं है. We have all kind of food in the England लगा भी सकते हैं.
इन द इंग्लैंड, सो नॉट नेसेसरी बट बेटर है कि आप कोई प्रिपोजिशन ना लगाएं, ठीक है। आई लाइक पोलिश फूड, अगेन कोई जरूरत नहीं है, पोलिश फूड वेरी मच, समटाइम आई गो टू अ पोलिश रेस्टोरेंट इन बाथ, द रेस्टोरेंट इज कॉल्ड मैकडॉज, ठीक है, एंड आई इट्स कॉल्ड रगडास, द पोलिश फूड इज डिलीशियस। सो दिस इज प्रिपोजिशन आर्टिकल। ये आर्टिकल आपको फिल करने थे, एक दो मिस्टेक्स दैट इज ग्रांटेड, नॉट अ बिग डील। आपको जो एग्जाम में आएगा वो छोटे छोटी चीजें आएंगी, एग्जाम में आपको जनरली एक स्टेटमेंट ही आएगा एंड वेरी इजीली यू कैन टेक इट। नाउ लेट्स टेक योर क्वेश्चंस इफ देयर एनी स्पेसिफिक क्वेरी, अगर आपके पास कुछ है तो यू कैन डू। नो साउंड, अगेन प्लीज लेट मी नो whether there is sound or not. Still no sound? Audible, okay. So I'm audible for majority of the people. Those who can't hear me, just please reconnect yourself. It's okay. ठीक है, तो ये तो था आज का हमारा, ये जो कल का हमने दिया था, होप आपने किया होगा। एक दो गलतियां अगर हो रही हैं, जनरली मिस्टेक्स आपसे तब होगा कि जहां कुछ नहीं लगाना है वहां भी आपने कुछ ना कुछ डाल दिया होगा, ठीक है, सो दैट इज एक्सेप्टेड, नॉट अ बिग डील, वी आर बिगिनर्स, ओके। तो अभी अगर आप मिस्टेक कर रहे हैं कोई बात नहीं, गो बाई कार, गो बाई अ कार नहीं, गो बाई कार, ऑब्वियसली एक कार है, एक ही होगी। चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। आपको एक शीट मिली होगी प्रीपोजिशंस की, राइट। सो प्रीपोजिशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। प्रीपोजिशन, तो जो आपको मैंने फॉरवर्ड किया था नोट्स, उस नोट्स में मेजॉरिटी ऑफ द प्रीपोजिशंस वेयर इनलिस्टेड, ठीक है। आपने देखा होगा इन, एट, बाई, इनटू, अपॉन, these all are the preposition and we have to learn one by one. सबसे इंपॉर्टेंट अगर एक टॉपिक आपके सिलेबस में कुछ है, दैट इज प्रीपोजिशन, 4 to 5 क्वेश्चंस। दिस इज द सोल ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में प्रीपोजिशन से 4 या 5 प्रॉब्लम्स आते ही आते हैं, और 50 बात कर रहा हूं मैं। सो प्लीज लर्न केयरफुली, इसको हम एक दिन में नहीं खत्म करेंगे, धीरे धीरे 1 या 2 दिन में हम खत्म करेंगे इसको, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम सीखते हैं प्रीपोजिशन रिलेटेड टू टाइम। टाइम से रिलेटेड प्रोपोजिशन को कैसे यूज किया जाता है, एंड आवर फर्स्ट प्रोपोजिशन इज एट। ठीक है, आई एम श्योर यू आर हैविंग योर, वेट आई एम गेटिंग अ कॉल। Sorry for the interruption, this was unknown number, so
at preposition. ठीक है, and I'm sure I'm audible. Yes, got it. So at first time, at is used when there is exact time. For example, at 3 PM. अगर किसी भी स्टेटमेंट में आपको प्रीपोजिशन फिल करना है एंड डैश के बाद कोई एग्जैक्ट टाइम गिवन है तो वी यूज एट 3 PM, पहला रूल. सेकेंड, एट इज यूज्ड फॉर खाने पीने के लिए, दैट इज मील टाइम. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एट डिनर, सी यू एट डिनर. ओके. तीसरा है पार्ट ऑफ द डे. Part of the day, for example at sunset. ठीक है. एंड लास्ट है, हम एट यूज करते हैं एज से रिलेटेड. एज, फॉर एग्जाम्पल एट एज 16. ठीक है. दोज हु आर राइटिंग प्लीज नोट डाउन एट. इतनी चीजों पे एट आएगा, ये रटने की जरूरत नहीं है, बट अगर आपने खुद से नहीं लिखा आपके नोटबुक में तो जनरली यू विल स्किप इट. Okay, so you have pen, you have paper, so please note down 4 things related to time जहां पे at use होता है. at का use और जगह भी होता है, there are certain other places where you use at, but related to time at is used here. ठीक है, so I'm sure you guys have noted this. अगला है by. Our next preposition is by. ये सारी चीजें टाइम से रिलेटेड हैं एंड टाइम इज द मोस्ट कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशन. ठीक है, अभी हम एक्सरसाइज कराएंगे आपको कल, तो यू विल कम टू नो. इन का यूज कहाँ कहाँ होता है. देखिए, इन का यूज पहला होता है सीजन में. सीजन्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन द समर. ठीक है, इन द विंटर, इन द रेनी सीजन. जब भी सीजन हो तो वहां पे मंथ या ईयर में. फॉर एग्जाम्पल इन फेब्रुवरी और इन, आपको एग्जैक्ट या इन 1947. ठीक है, ऐसे में. फिर है आफ्टर अ सर्टेन पीरियड अ टाइम. आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में भी इनका यूज है. आई एम कमिंग इन एन आवर.
आई एम कमिंग इन एन आवर। ठीक है, कमिंग इन एन आवर, मैं इतने टाइम में आ रहा हूं। ठीक है, तो ये हुआ इनका यूज कैसे करेंगे। नेक्स्ट है, हम नेक्स्ट बात करते हैं ऑन का। आपको ये बहुत ज्यादा लग रहा होगा ना, लेकिन डोंट वरी, एक बार आपने लिख लिया और एक बार आपने देख लिया और फिर प्रैक्टिस प्रैक्टिस इतना करेंगे कि आराम से हो जाएगा। ऑन, ऑन का सबसे ज्यादा यूज होता है डे में। फॉर एग्जाम्पल, ऑन संडे, ऑन मंडे। ठीक है, या पार्ट ऑफ द डे वेयर डे इज नेम्ड, पार्ट ऑफ द डे। जैसे सनसेट के लिए ऑन नहीं होगा, ऑन सनसेट, सनसेट के लिए ऑन यूज होगा इफ सनसेट इज मंडे सनसेट। डे में भी स्पेसिफिक टाइम अगर है, सनसेट का यूज हमने पहले किया है, ठीक है, बाई सनसेट। लेकिन यहाँ पे अगर हम सनसेट का, इवनिंग का, नाइट का बात करें तो होगा ऑन फ्राइडे नाइट। ऑन फ्राइडे नाइट, ये एन है, आप समझ जाइएगा। डे के बाद डेट, डेट है ऑन, ऑन 4 दिसंबर। ठीक है, इस तरह से हम ऑन का यूज करेंगे। देखिए अभी तक हमने कितने प्रीपोजिशन देखे हैं, ऑन, इन, बाय, एट। ठीक है, ऑन, इन, बाय, एट। सर्टेन अदर प्रीपोजिशन है जो कम यूज होते हैं लेकिन आपको एक साथ देख लेना है। एक होता है एगो, एगो का यूज कैसे हो, सर्टेन टाइम, एगो तब होगा व्हेन सर्टेन टाइम, सर्टेन टाइम इन द पास्ट। ठीक है, सर्टेन टाइम इन द पास्ट अगर है तो हम एगो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 ईयर एगो। ठीक है, एगो हो गया। एगो से मिलता जुलता है बिफोर। से एगो सर्टेन टाइम एंड बिफोर होता है प्रेजेंट टाइम से पहले या किसी स्पेसिफिक टाइम से पहले। ठीक है, बिफोर का यूज होगा, से बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर लंच। ठीक है, इन सब चीजों के लिए हम बिफोर का यूज करेंगे। बिफोर के बाद आपका है ड्यूरिंग। ठीक है, ड्यूरिंग के लिए है समथिंग इन प्रोसेस, जैसे ड्यूरिंग नाइट। ये कंटिन्यूटी बताता है कि रात के टाइम में। ठीक है, इन नाइट, इन नाइट अगर कहीं पे है, एट नाइट है, एट नाइट, सो एट नाइट का मीन्स हम विल सी यू एट नाइट, ये सही है। बट ड्यूरिंग नाइट वी प्ले क्रिकेट, दैट मीन्स वी आर प्लेइंग क्रिकेट ड्यूरिंग। अभी थोड़ा सा ये थियरी पार्ट इट्स अ बिट स्ट्रेसफुल कि हमें जैसे रूल्स सीख रहे हैं, मैथ सीख रहे हैं, बट व्हेन वी डू प्रैक्टिस वेरी इजिली यू कैन। ठीक है, चलिए, ड्यूरिंग हो गया। ड्यूरिंग के बाद अच्छा, सिंस और फॉर मैं आपको बता चुका हूं कल, एक बार फिर से देख लेते हैं रिकैप। सिंस फॉर, सिंस
फॉर, हम इस पॉइंट पे हैं एंड वी आर टॉकिंग अबाउट दैट आई एम वेटिंग हियर 2 आवर 3 आवर, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता है. Since is always used when there is a starting point, and for is a period of time. ठीक है, since and for ये दो widely used and widely asked in examination. since and for का थोड़ा एग्जांपल से क्लियर करते हैं. since for वाला पहला, I am teaching dash फोर ओ क्लॉक इन दोनों में अगर आपको फिल करना है, सो आई एम टीचिंग या आई हैज बीन टीचिंग, करेक्ट तो होगा आई हैज बीन टीचिंग. आई एम की जगह ग्रामेटिकली आप देखना चाहें, सो आई हैव बीन होगा. आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग 4 o'clock, आई हैव बीन टीचिंग 40 minutes. अब कहाँ पे सिंस होगा, कहाँ पे फॉर होगा? ऊपर फार्मूला हमने देखा कि अगर हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता हो तो हम सिंस का यूज करेंगे. तो 4 o'clock is the starting point and since then I am continuously teaching, so I have been teaching since 4 o'clock. ठीक है, I have been teaching 40 minutes for 40 minutes. वो 40 मिनट कब से है नहीं पता, बट आई हैव बीन टीचिंग फॉर 40 minutes. यानी for 40 minutes I am teaching, but it's not sure by which time we are teaching. एक एग्जांपल लिखिए और आप बताइए. Krishna has been waiting for Radha dash 2019. यहाँ पे सिंस होगा या फॉर होगा? प्लीज डू मैसेज, जरा टेक्स्ट करिए आप लोग. सिंस वेरी गुड, वेरी गुड, दिल खुश कर दिया आप लोगों ने. सिंस होगा और आप लोगों ने इतना अच्छा आंसर दिया है कि राधा जरूर आएगी. अब तो कृष्णा का इंतजार खत्म हो जाएगा. वेरी गुड, सिंस हो गया. एक और होता है अंटिल. ठीक है, अंटिल का मीनिंग होता है अप टू टाइम, अप टू द टाइम. ठीक है ना, अप टू द टाइम. Krishna will wait for Radha until, कुछ भी एक फिक्स हुआ, until death, until 10 o'clock. ठीक है ना, until 10 o'clock. So until is basically a certain point of time
होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे प्रोपोजिशन हैं रिलेटेड टू टाइम। बहुत अच्छी क्लैरिटी इनकी तभी आएगी जब हम लोग अदर एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, कहाँ गई राधा? ठीक है, चलिए। ठीक है, अब कुछ एक जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं प्रीपोजिशन में हम वो बताते हैं, जैसे ऑन एंड अपॉन। ठीक है, इन, इनटू, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, ऑन और इन जनरल सेंस में होगा कि एक टेबल है, ऑन द टेबल। ये हमने कप बनाया है, कप इज ऑन द टेबल। ठीक है, अगर कोई चीज ऑन द है एंड लाइक देयर इज अ कैट, कैट को बना पाना मेरे लिए तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सपोज ये कैट है, ठीक है, एंड इट जम्प्ड एंड सिट हियर, तो cup is on table, and when there is something in motion, that cat jumped upon the table. When there is motion, we will use upon, not on. Similar concept in में भी है. There is a, suppose Chintu is standing here, ठीक है, and this is the river. ठीक है, in river there is a ball. ये बॉल है, और बॉल को देखा, वेयर इज द बॉल? बॉल इज इन द रिवर। और क्वेश्चन है वेयर इज द बॉल, देन बॉल इज इन द रिवर, बिकॉज बॉल इज स्टैटिक, कोई मोशन नहीं है। एंड इन ऑर्डर टू गेट द बॉल, इफ चिंटू जम्प्ड इनसाइड द रिवर, then it would be Chintu jumped into the river. यहाँ पे into आएगा because jumped, there is a motion. Okay, here there is a motion, then we use Chintu jumped inside the. Let's do some example. कुछ example करते हैं और देखते हैं आप लोग कहाँ तक सीख पाए। फर्स्ट है I will see you, I'll see you dash Monday. चलिए क्या होगा सोच के बताइए। गुड, इजी क्वेश्चन है। आई विल सी यू ऑन मंडे, वेरी गुड। सेकंड है द मूवी स्टार्ट्स 6 PM। यहां क्या होगा ये बताइए आप लोग। सी यू ऑन मंडे।
इन, किसी ने कहा है इन, ओके, किसी ने कहा एट। देखिए कंफ्यूजन यही बात है, अभी बताया, इसीलिए आपको जरूरत है कि एक बार फिर से आराम से मेमोराइज करने की। द मूवी स्टार्ट्स एट 6 PM, ये होगा करेक्ट, एट 6 PM। ठीक है, ऐसे ही 7-8 एग्जाम्पल करते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा, नॉट अ बिग डील। थर्ड एग्जाम्पल, आई लाइक टू प्ले, क्या खेलूं मैं, आई लाइक टू प्ले, कुछ नहीं, आई लाइक टू प्ले आफ्टरनून, क्या आएगा, आई लाइक टू प्ले, यस, आई लाइक टू प्ले इन द आफ्टरनून। ठीक है, गुड। फोर्थ है कंगना, कंगना का क्या करें, कंगना इज गोइंग टू मुंबई, कंगना इज गोइंग टू मुंबई डैश 2 वीक्स, क्या आएगा, कैपिटल है, कंगना इज गोइंग टू मुंबई, oh very good, for 2 weeks, yes, Kangna is going to Mumbai for 2 weeks, okay. Alia is waiting dash Saturday, Alia is waiting Saturday, यहाँ पे क्या होगा, since, very good, यही पंक्चुअलिटी एग्जाम में रहेगी ना, then you will get very decent mark and no one can defeat you, okay? तो ये सारे एग्जांपल्स हैं, एक और कर लेते हैं, द flowers will bloom पर्टिकुलर सीजन की बात है, क्या होगा, द फ्लावर्स विल ब्लूम इन तो मैंने बोल दिया, हाँ ठीक है, नॉट ड्यूरिंग इन, ठीक है, फ्लावर्स ब्लूम इन, चलिए इतना आपका हुआ है। तो ये जो टाइम से रिलेटेड प्रोनाउंस हैं उनका बेसिक्स अभी आपने किया है, अभी थोड़े जो डिफिकल्ट वाले हैं, ये सैटरडे, मिडनाइट, वो हम प्रैक्टिस के थ्रू सीख लेंगे। अब देखते हैं प्लेसेस से रिलेटेड अगर हमें यूज करना है प्रोनाउन तो कैसे यूज करेंगे, जिसमें आपका इन है, इनसाइड है, ऑन है और एट है, ठीक है, इन चारों को कैसे यूज करते हैं। फर्स्ट ठीक है, there is a there is a there is a girl, there is a girl
ये तो बहुत इजी हो गया। ठीक है, दजगल इन द रूम होगा, ऑब्वियसली इन द रूम। सेकंड थोड़ा टफ बनाते हैं, ठीक है। शी वॉज वेटिंग, शी वॉज वेटिंग कॉर्नर। आपको इन चारों में से फिल करना है। एक्चुअली शी वॉज वेटिंग एट द कॉर्नर। ओह वेरी गुड। इनसाइड द कॉर्नर गलत है, इनसाइड द कॉर्नर एक मार्क्स आपका चला जाएगा, जिसने भी इनसाइड लिखा है। नो, इनसाइड का एग्जांपल क्या होता है वो हम बाद में बताएंगे आपको। थोड़ी सी मेरी गले में प्रॉब्लम चल रही है, आई डोंट नो इट्स कोविड और ऑल, क्या है आई डोंट नो। थर्ड, put the present the box। इसमें क्या होगा? वेरी गुड, इनसाइड। ठीक है, पुट द प्रेजेंट इनसाइड द बॉक्स। ठीक है, सो इन और इनसाइड में फर्क होता है। अगर देयर इज अ रूम, ठीक है, इट्स ऑल क्लोज्ड, देन समथिंग कम इनसाइड, इट वुड बी इन। और अगर कोई बॉक्स है एक साइड से ओपन है एंड यू आर पुटिंग समथिंग, देन इट इज आएगा इनसाइड। ठीक है, ऑन एट से बहुत कंफ्यूजन है, बहुत डिटेल में करेंगे एक्सरसाइज में हम, फिलहाल जस्ट टेक ए ग्लिम्प। चलिए, 4 वर्ड हैं, दे आर वेरी सिमिलर। देखते हैं वो आप कितना कर पाएंगे। वन इज अंडर, beneath, below and underneath। ठीक है, हम 4 स्टेटमेंट दे रहे हैं और यू हैव टू पुट द राइट वन। पहला, द वैली इज the valley is सबने सही करा है, बिलो। वेरी गुड। द वैली इज बिलो द सी लेवल। बिलो तब होता है व्हेन कंपैरेटिव है, इसके कंपैरिजन में ये बिलो है। सेकंड है द रैबिट और द डॉग इज ट्री। इसमें क्या करेंगे? डॉग इज अंडर द ट्री। हो वेरी गुड।
डॉग इज अंडर द ट्री। बहुत इजी मैंने बता दिया क्या? चलिए थर्ड लेते हैं। द चाइल्ड हाइड इन्हीं चार में से यूज करना था। चाइल्ड हाइड बीनीथ मतलब नीचे। देखिए ब्लैंकेट से होता है ना, तो ब्लैंकेट का मतलब है कि ये चाइल्ड है, इज लाइक हिज और शी इज लाइंग डाउन, ब्लैंकेट पूरा इसको रैप कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पे होता है अंडरनीथ, मतलब कंप्लीटली अंडरनीथ। और बेनीथ का मतलब भी बिलो होता है, नीचे। इन चारों वर्ड्स के मीनिंग अगर हिंदी में देखा जाए तो नीचे ही होता है, ठीक है। अंडर नीचे, बेनीथ नीचे, बिलो नीचे, ठीक है। अब ये इंग्लिश में जो आप वर्ड्स जो स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट से डिसाइड करेंगे क्या है। तो अंडरनीथ का एग्जांपल आपने देख लिया, बेनीथ का भी एग्जांपल मैं आपको करा दूंगा। अमरीश पुरी relaxed in the shade in the so under the tree means something, a tree है उसके नीचे कहीं भी, और जो beneath है यहाँ आएगा beneath the tree। ये चार एग्जांपल आप लिख लीजिए, दोबारा कभी भी जरूरत पड़ेगी कि कौन से वर्ड्स थे, उन पे कैसे हमने यूज किया है, तो इन चारों वर्ड्स से कुछ सेंस मिलेगा कि दिस इज हाउ वी हैव यूज्ड, ठीक है। तो ये चार एग्जांपल, बिलो, अंडर, बेनीथ, ये जो चारों एग्जांपल है ना, दे विल हेल्प यू लॉट। अभी तो हम इन चारों के ही एग्जांपल चार चार करा रहे हैं, जब बहुत सारे प्रीपोजिशन को मिक्स करके काम करेंगे ना, तब थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी आपको पिक करने में। चलिए बहुत ज्यादा नहीं, आज जल्दी छोड़ देंगे। नियर, नियर का मतलब आपको पता है, बाई का मतलब आपको पता है, नेक्स्ट टू का मतलब आपको पता है, एंड अपोजिट। इन चार, नेक्स्ट, बाई, नेक्स्ट, बाई, नेक्स्ट टू, अपोजिट, इन चारों का कैसे यूज करते हैं, कहाँ कौन सा आएगा फर्स्ट, चलिए आप लोग बताएंगे। करिश्मा करिश्मा लिव्स, बताइए। हालांकि इसमें एक से ज्यादा भी फिट हो सकता है, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग हो जाएगा। देखते हैं आपके दिमाग में फर्स्ट कौन सा आया।
देखिए आपका जवाब मिक्स आ रहा है, तो हमें देखिए पहला नियर, अगर नियर लगाना है तो हमें दा भी लगाना पड़ेगा। करिश्मा लिव्स, करिश्मा लिव्स नियर द स्कूल, ये सही हो जाएगा कि स्कूल के आसपास करिश्मा रहती है। सेकंड में ये हो जाएगा करिश्मा लिव्स नेक्स्ट टू स्कूल, ये भी सही है। करिश्मा लिव्स अपोजिट टू स्कूल, ये भी सही है। लेकिन इन चारों के चार मीनिंग हैं, वो मीनिंग क्या है मैं बता रहा हूं। देखिए मान लीजिए ये दो रोड है, ये रोड है और इस रोड को एक ये रोड क्रॉस कर रहा है और ये है आपका स्कूल, ठीक है, ये आपका स्कूल है। और एक रोड सपोज यहां से भी आता है। चलिए इतना कर लीजिए। द फर्स्ट स्टेटमेंट, करिश्मा लिव्स नियर द स्कूल, इसका मतलब होगा इस स्कूल के आसपास करिश्मा रहती है। एक रोड ऐसे भी जाता है, ठीक है। तो करिश्मा लिव्स नियर द स्कूल मीन्स करिश्मा इस एरिया में कहीं भी रह सकती है, ठीक है। सेकंड है करिश्मा लिव्स नेक्स्ट टू स्कूल, यानी करिश्मा का घर जो है नेक्स्ट टू स्कूल है, मीन्स अगर आप इधर से आएंगे तो स्कूल के जस्ट इधर करिश्मा का घर है, अगर आप इधर से जा रहे हैं तो नेक्स्ट टू का मतलब यहाँ करिश्मा का घर है। नेक्स्ट टू स्कूल मीन्स बिल्कुल सटा हुआ, करिश्मा का घर स्कूल से बिल्कुल सटा हुआ है। करिश्मा लिव्स अपोजिट टू द स्कूल मीन्स जहां पे स्कूल है इसके जस्ट अपोजिट वाला घर करिश्मा का है, यहाँ आ जाएगा। तो ग्रामेटिकली तो ये चारों सही है स्टेटमेंट, डिपेंड करता है कि कौन सा मीनिंग आप ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बिलो एंड बेनिथ इज नॉट क्लियर, अरे बहुत सारे एग्जांपल कराएंगे, डोंट वरी। अभी तो बिलो और बेनिथ, बेनिथ भी कोई वर्ड होता है, आपने समझ लिया ना, दैट्स इट। अभी आराम से धीरे धीरे, ओके। चलिए, एक जनरल कंफ्यूजन होता है लोगों में बिटवीन एंड एमएम का, ठीक है। कई बार हम डिफरेंस जानते हुए भी गलती कर देते हैं। दोनों होता है आउट ऑफ, बिटवीन, बिटवीन इज ऑलवेज कंपैरिजन टू, एंड एमंग वन आउट ऑफ मेनी, ठीक है। बिटवीन का टू एंड बिटवीन, एनी कमेंट सर, we are not in class 5 to 6. Actually I would like to teach you 5 to 6, don't worry, because since morning I'm feeling a bit, what let's say this, not exactly sick but I'm feeling very weak, so there is no energy remains, so morning की class में भी was not very much active। अब भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना भी अच्छे से जितना भी करा पाऊँ मैं आज को, आज आपको कराऊंगा, ठीक है। ओके, डू वन थिंग, प्रीपोजिशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं
आज हम आपको जो शीट देंगे फॉर योर प्रैक्टिस, इट वुड बी बेस्ड ऑन द प्रीपोजिशन विच आई टॉट टुडे। ठीक है, जो मैंने आज आपको पढ़ाया है उसी की शीट मिलेगी। हम टेंसेस पे हमने एक टेंस प्रेजेंट कर लिया है, लेट्स कंप्लीट पास्ट टुडे। ठीक है, प्रीपोजिशन एक दिन में पढ़ने वाली चीज नहीं है। ऑलमोस्ट आज कल 2 दिन तो हम क्लास में पढ़ाएंगे प्रीपोजिशन, एंड यू हैव टू कीप प्रैक्टिस फॉर एटलीस्ट 4-5 days, राइट। अराउंड 200 to 300 क्वेश्चंस आपको शीट में मिलेंगे प्रीपोजिशन की। ठीक है, रूल्स याद नहीं रहते, यू नो, जो भी रूल्स मैंने बताया कि टाइम में यहाँ यू यूज करेंगे, यहाँ यू यूज करेंगे, सो नो वन इज गोइंग टू रिमेंबर द रूल। इट्स योर प्रैक्टिस दैट विल मेक यू कंफर्टेबल। ओके, सो लेट्स डू प्रेजेंट टेंस हमने कर लिया है, पास्ट टेंस की बात आज करेंगे। अच्छा, कल किसी ने पूछा था व्हाट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आज जरूरत है वर्ब की, तो हम बता देते हैं वर्ब के फॉर्म क्या क्या होते हैं। जैसे वर्ब के 4 फॉर्म होते हैं, 3 मेन होते हैं प्लस एक आईएनजी फॉर्म होता है। गो, वेंट, गॉन, गोइंग। ठीक है, तो गो मीन्स जाना। गो इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। When any verb is treated in past tense, that is the second form of the verb. And in passive voice, we always use third form of the verb, that is gone. ठीक है, पैसिव में भी और परफेक्ट टेंस में भी हम गॉन का यूज करेंगे। तो फर्स्ट फॉर्म वर्ब का ये होता है गो, जो हम प्रेजेंट में यूज करते हैं। सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब पास्ट में यूज करते हैं, एंड गॉन हम परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस में और पैसिव वॉइस में, और जो गोइंग होता है ये कंटिन्यूअस, सारे कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं। दिस इज 3 फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो पास्ट के पहला हमारा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जैसे इसमें है कन्हैया went to, कन्हैया went to ईटानगर। ठीक है, मतलब कन्हैया ईटानगर गया, वो जा चुका है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, दैट्स इट। ही वेंट टू ईटानगर, और बाकी ये हमारा सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट एक प्रेडिकेट है, हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, यही इसकी पहचान है। कन्हैया वेंट टू ईटानगर। हमें अगर इसका निगेशन बनाना है, निगेटिव, तो हम डिड का यूज करेंगे। कन्हैया ईटानगर नहीं गया, कन्हैया डिड नॉट गो टू ईटानगर। देखिए, जब हमने डिड यहां यूज कर दिया ना, तो फिर ये सेकंड फॉर्म नहीं आएगा, फिर यहां फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, और यहीं पे कई सारे लोग मिस्टेक करते हैं। ठीक है, कन्हैया डिड नॉट गो टू ईटानगर, इट्स समथिंग लाइक दैट। जब तक हम किसी स्टेट प्रेजेंट अगर होता पास्ट इंडेफिनिट की जगह, अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता, तो वहां पे हम डू और डज का यूज करते हैं, और जब डू और डज का यूज करते हैं तो वर्ब में ई एस नहीं लगाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करा दूं, अगर
कन्हैया गोज टू ईटानगर, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। लेकिन अगर इसका हमें नेगेशन करना हो, कन्हैया डज नॉट गो टू ईटानगर, तो जब हमने डज लगा दिया ना, तो जो गोज वाला ई एस है ये यहाँ पे नहीं आया, सिर्फ गो आ जाएगा। तो वही सिमिलर काइंड ऑफ थिंग हैपेंस इन पास्ट इंडेफिनिट आल्सो। कन्हैया वेंट टू ईटानगर, ओके। कन्हैया डिड, व्हेन ही यूज डिड, तो फिर यहाँ पे वेंट ना के सिर्फ गो आएगा। होप क्लियर। ठीक है, चलिए अब हम इसी दो का नेगेशन हो गया, इंट्रोगेटिव बनाते हैं। तो कन्हैया वेंट टू ईटानगर, कन्हैया डिड नॉट गो टू ईटानगर। इसी का अगर हमें इंट्रोगेटिव बनाना हो, डिड कन्हैया गो टू ईटानगर, ये हो जाएगा। डिड कन्हैया गो टू ईटानगर। अगर इसमें वेयर डिड कन्हैया गो और व्हाई डिड कन्हैया गो टू ईटानगर, ऐसा डब्ल्यू एस टाइप बनाना है, व्हाई डिड कन्हैया गो टू ईटानगर, ठीक है। तो ये चारों फॉर्म है प्रेजेंट, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट के। पास्ट इंडेफिनिट को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है, देन योर कीवर्ड इज दिस, योर कीवर्ड इज डिड। अगर किसी स्टेटमेंट में डिड लगा हुआ है या वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, then its sign it is present, sorry, then it's past indefinite tense, ठीक है। So guys, what should I do? Should I continue past continuous? Please let me know whether should I continue. Please do text, let me know. Sir, please do analyze the comments we put here, and it would be more better if you go systematically, take rest. वन मोर एग्जाम्पल, ओके ठीक है। तो आज हम दोनों कर लेते हैं, प्रेजेंट पास्ट के दो कर लेते हैं, ठीक है। चलिए हम बात कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट की। एक और चार हम स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं। पहला, पहला स्टेटमेंट है रेखा sang a song, रेखा sang a song, ठीक है। रेखा ने गाना गाया। अब ये sang, सिंग, sang, sang होता है तो सेकंड फॉर्म है। इसका अगर हमें निगेटिव वर्ड बनाना है, तो रेखा did not sing a
song. ठीक है. How to identify? Yet sang is the second form of a verb. When there is second form, then it must be the past tense and past indefinite. अगर हमें इसका negation बनाना है तो did और not use होगा, and जब भी हमें did use कर लिया, अब ये second form नहीं होगा. Did itself conveys the message that tense is in past. तो यहाँ पे sing first form आ जाएगा. ठीक है. रेखा did not sing a song. अब इसी को आपको इंटरोगेटिव बनाना है. Did रेखा sing a song? क्या रेखा ने गाना गाया? ठीक है. वाई लगाना है, वेयर लगाना है. वेयर डिड रेखा sing a song? अगेन इट्स इंटरोगेटिव. तो ये चार फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के. ठीक है. सो पास्ट इंडेफिनिट, अगेन पास्ट इंडेफिनिट का कोई भी स्टेटमेंट होगा, अगर वो इंट्रोगेटिव है तो डिड मिलेगा ही मिलेगा. ठीक है. नेगेटिव है तब भी डिड मिलेगा, और अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म मिल रहा है तब भी वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. सेम नोट पे लेट्स अगला देखते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. आज पास्ट टेंस खत्म ही कर देते हैं. ठीक है. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. पास्ट कंटिन्यूअस में जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या था? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये था, शाहरुख खान इज सिंगिंग अ सॉन्ग. ठीक है. शाहरुख खान इज सिंगिंग अ सॉन्ग. शाहरुख खान एक गाना गा रहा है. प्रेजेंट की बात है. पास्ट टेंस में होगा, शाहरुख खान गाना गा रहा था. ठीक है ना. पास्ट में गा रहा था बट अभी नहीं. तो इसका एग्जांपल आएगा, कोई सिंगर का नाम बताओ आप लोग जिसका गाना आपको अच्छा लगता हो. अरिजीत. ठीक है. अरिजीत. चलिए, Arijit was singing a song. Arijit was singing a song. जब भी was आए ना और वर्ब का ing फॉर्म आए, ये होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. Arijit is singing a song, present continuous. Arijit was singing a song, past continuous tense. ठीक है. तो जैसे आपने देखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, एम, आर था. उसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस में है was and where. ठीक है. was and where is used. So Arijit was singing a song. हमें इसका नेगेशन बनाना है. Arijit was not singing a song. Arijit was के जस्ट बाद नॉट लग जाएगा. ठीक है. इज के जस्ट बाद नॉट लगता था प्रेजेंट कंटिन्यूअस में. एम के जस्ट बाद नॉट लगता था प्रेजेंट कंटिन्यूअस में. आर के बाद प्रेजेंट में.
पास्ट कंटिन्यूअस में was के बाद लग जाएगा डायरेक्ट। तो ये हो गया आपका सिंपल एंड निगेशन। इंट्रोगेटिव कैसे बनता है? बिल्कुल सिमिलर लाइन पे, जैसा हम प्रेजेंट में करते थे वैसा ही करेंगे। was Arjit singing a song? ठीक है, was Arjit singing a song? क्या अरिजीत गाना गा रहा था? वो गाना क्यों है? Why was Arjit singing a song? तो पास्ट कंटिन्यूअस को आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है। was होगा या where होगा, ठीक है ना? was होगा या where होगा। अब हम चलते हैं, एक सेकेंड, ठीक है। तीसरा हमारा है, तो वेयर का भी यूज कर लेते हैं एक दो। SRK एंड माधुरी वेयर डांसिंग, ठीक है। SRK एंड माधुरी वेयर डांसिंग, तो वेयर यूज है एंड डांसिंग। माधुरी और SRK डांस कर रहे थे, इज द मीनिंग। टेल मी अ मूवी इन विच SRK एंड माधुरी बोथ हैव वर्कड। देवदास, क्या मूवी है वाह। एंड रोजी, जो कि कोयला, दिल तो पागल है, दिल तो पागल है, कोयला, ठीक है भाई। अच्छा खासा एक्सपीरियंस है मूवीज का आप लोगों को। देखिए, तो ये जब भी दो लोग होते हैं ना, तो वाज ना होके वेयर यूज होता है। SRK एंड माधुरी वेयर डांसिंग। नेगेटिव बनाना है, बहुत इजी है। SRK एंड माधुरी वेयर नॉट डांसिंग, ठीक है। व्हाई वेयर दे नॉट डांसिंग? बिकॉज दिल तो पागल है, ठीक है। नॉट डांसिंग, यस या नो में आंसर देना है, तो वेयर SRK एंड माधुरी डांसिंग, वे कहाँ डांस कर रहे थे? वेयर SRK एंड माधुरी डांसिंग। तो वेयर के साथ वाई वेयर SRK एंड माधुरी डांसिंग, व्हेन वेयर SRK एंड माधुरी वर्निंग, जो भी आपको रिप्लेस करते रहिए, फॉर्मेट यही रहेगा, ठीक है। तो बहुत बहुत इजी है इसको आइडेंटिफाई करना, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को। यहाँ पे was या where होगा प्लस ING फॉर्म होगा, ठीक है। ये तो हुआ आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट,
पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर आप टेंस को इजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे ना, you will get benefit in two sections. One, active passive voices, and another is direct and indirect narration, where you have to identify the tense, in which tense the thing is, and then you apply the rules and formula to convert it. Well, past perfect thing, देखिए टेंस को अगर आइडेंटिफाई करना है ना, देयर इज रिलेशन प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट को अगर आप लिंक करके देखेंगे, देन यू फाइंड अ पैटर्न, अ सिमिलरिटी। तो पहले हम आपको रिकॉल करा दें व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट। व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बहुत सिंपल है, राम हैज गॉन। ठीक है, तो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वहां पे हैज और हैव मिलेगा, एंड प्लस जो वर्ब है इसकी थर्ड फॉर्म मिलेगी। ठीक है ना, तो प्रेजेंट आपको याद है हैज और हैव मिलेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। राम हैज गॉन, राम जा चुका है, ये इसका मीनिंग है। अब आगे देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे ये अलग है और क्या इसमें। देखिए अंजलि हैड visited yesterday, yesterday को हटा ही दो, अंजलि हैज विजिटेड फुल स्टॉप। जो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा उसमें हैड होगा, ठीक है, हैड होगा प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अंजलि हैड विजिटेड, they had played cricket, they had played cricket, यहां भी हैड आएगा। देखिए जो पास्ट जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था वहां पे हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब थी, हैज एंड हैव। सिंगुलर नंबर के लिए हम हैज यूज करते थे एंड प्लूरल नंबर के लिए हम हैव यूज करते थे। ठीक है, सो अगर इसको हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ले जाना हो तो अंजलि हैज विजिटेड, दे हैव प्लेड क्रिकेट। लेकिन जब पास्ट परफेक्ट पे जाएंगे तो हैज हैव दोनों कट के सिर्फ और सिर्फ हैड आ जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट टेंस बहुत इजी है, ऑलवेज यू विल फाइंड हैड, always you will find had in past perfect tense and at the same time third form of the verb। तो अब इनके जैसे हम चार फॉर्म लिखते हैं ना हम लोग हर टेंस के, तो इसके भी चार सेंटेंस लिख लेते हैं। सिमरन हैड gone to Simran had gone to London। सिमरन किस मूवी में हीरोइन का नाम था? DDLJ। डोंट नो, अरे डोंट नो मत बोलो, इट्स नेशनल इंसल्ट इफ यू डोंट वॉच, इफ यू डिडंट वॉच DDLJ।
रोजी जुगली क्या है भाई, कौन है रोजी रोजी कर रहा है? ठीक है, सिमरन हैड गॉट टू लंदन, इसको नेगेशन में बदलना है, वेरी सिंपल। सिमरन हैड नॉट गॉन टू लंदन, सिंपल। तीसरा हमें बनाना है हैड सिमरन गॉन टू लंदन, why had सिमरन gone to लंदन। ठीक है, तो आपको देख रहा होगा कि इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ऑलवेज यू विल फाइंड हैड, इधर इट्स सिंपल और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, हर एक फॉर्म में जहां भी हैड आपको दिख जाए, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। Those who have seen DDLJ multiple times, please reply me text, why had Simran gone to London? To say राकुदा, मस्ती करना फ्रेंड के साथ, मूवी ना देखी है, ओके नहीं देखी है तो देख लेना आज। टू फाइंड हिज लवर, शाहरुख को धोखा देके टूर। ठीक है, बहुत हो गया पीपल। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो ये चार फॉर्म है आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। लास्ट हमारा जो पास्ट परफेक्ट टेंस के लास्ट जो हमारा बच रहा है एक टेंस, उसको भी कवर कर लेते हैं आज। दैट इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, चलिए। जैसे आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन एंड हैव बीन का यूज हुआ था। हैज बीन और हैव बीन ये यूज हुए थे कहाँ? प्रेजेंट में। ठीक है, पास्ट में हो जाएगा हमारा हैड बीन। ठीक है ना, तो जहां पे हैज बीन और हैव बीन है, इट मीन्स इट्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और जब हैड बीन आ जाए तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट में हमें ये देखना था कि सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है हैज हैव के लिए। यहाँ पे हमें कुछ नहीं देखना है, इट्स इधर सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, इन बोथ द केसेस हमें हैड ही यूज करना है। ठीक है, तो इनको हटाते हैं और चार स्टेटमेंट लिख लेते हैं। सिंस फार का यहाँ यूज आएगा और आपका वो भी टेस्ट हो जाएगा एक बार। चलिए, राहुल had been waiting for Rahul had been waiting for Gauri. राहुल हैड बीन वेटिंग फॉर गौरी। अब ये है कि राहुल गौरी का इंतजार
कर रहा था, और अगर यहाँ पे हैज बीन होता तो अभी भी वो कर रहा है। राहुल हैड बीन वेटिंग फॉर गौरी, मीन्स वो कर रहा था, अब नहीं कर रहा है, नाउ दे गॉट मैरिड। ठीक है, तो राहुल हैड बीन वेटिंग फॉर गौरी, दिस स्टेटमेंट इज फ्रॉम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, चलिए इसी को थोड़ा अगर हम लर्न करें, आपका प्रीपोजिशन टेस्ट करें, तो जरा आप बताइए मुझे, राहुल had been waiting for Gauri dash college days। यहाँ पे सिंस आएगा या फॉर आएगा? अगर आपने ये सही कर लिया तो समझिए आपका प्रीपोजिशन स्ट्रांग है। अरे सबका सेंस है, वेरी गुड वेरी गुड। सो राहुल कब से कर रहा था? दिस इज वेरी ट्रू, ऑल्दो वो सही में कॉलेज डेज से कर रहा था, सिंस। ठीक है, सिंस कॉलेज डेज, बिकॉज कॉलेज डेज इज अ पॉइंट, ऑल्दो इट्स ब्रैकेट, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था, सेकंड ईयर में आया होगा, थर्ड ईयर में आया होगा, और अभी यहाँ पे है, बट वो कॉलेज डेज से वेट कर रहा है। सो ये टाइम कंटिन्यूएशन शो करता है, दिस इज नॉट द ब्रैकेट ऑफ टाइम, स्टार्टिंग पॉइंट है कॉलेज डेज, चाहे यहाँ से कर लो, चाहे यहाँ से कर लो, चाहे यहाँ से कर लो, और वहां से स्टिल पॉइंट तक कर रहा था। ठीक है, तो आपने सही पकड़ा है, गुड। अब 4 स्टेटमेंट लिख लेते हैं इनके। मनोज had been singing since childhood। ठीक है, ये स्टेटमेंट है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। निगेशन में हमको लाना है मनोज had not been Manoj had not been singing since childhood। इंट्रोगेटिव में लेके आना है had Manoj been singing since चाइल्डहुड। ठीक है, हैड पहले आ गया, लास्ट में होगा why had Manoj been singing since चाइल्डहुड। तो आप ये चारों नोट कर लीजिए, और फिर हम आपको प्रेजेंट और इसका कंपैरिजन बता देते हैं। ठीक है, चलिए, होप यू हैव नोटेड दिस। अब प्रेजेंट और पास्ट में क्या डिफरेंस है वो दोनों देख लीजिए। ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल होने जा रही है। ठीक है, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है। इसके कंपैरिजन से ही आपको पता लग जाएगा कि ये टेंस कौन सा है। देखिए, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा ना, उसमें क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और अगर प्लूरल है तो ईएस जुड़ जाएगा।
ठीक है, यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म, दैट्स इट, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस आता है तो यहाँ पे आएगा इज, एम, आर प्लस आई एन जी फॉर्म। पास्ट कंटिन्यूअस है, was, where प्लस आई एन जी फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो यहाँ पे आएगा हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और परफेक्ट कंटिन्यूअस है अगर, तो यहाँ पे आएगा हैज बीन या हैव बीन। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आएगा हैड बीन। और अंडरस्टूड है कि यहाँ भी प्लस आई एन जी फॉर्म रहेगा और यहाँ भी आई एन जी फॉर्म रहेगा। ठीक है, तो आपको एक सिमिलरिटी दिख रही होगी। ठीक है, तो ये जो टेबल बनी है आप इसको बना लीजिए। ठीक है, वर्ब ईएस, वर्ब सेकंड फॉर्म, इज एम आर प्लस आई एन जी, वॉज वेयर आई एन जी, हैड थर्ड फॉर्म। और अगर इसमें आपको नेगेशन भी यूज करना है तो यहाँ पे होता है, मतलब इसमें डज एंड डू, ठीक है, डज या डू से लगता है और यहाँ पे इसका नेगेशन बनता है डिड से। ठीक है ना, इज एम आर है तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉट इसके जस्ट बाद लगा देंगे, हैज के बाद नॉट लगा देंगे, हैव के बाद, और नॉट यहाँ भी लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे डज और डिड यूज करते हैं। और जब डज और डू यूज होता है तो वर्ब का ईएस फॉर्म हट जाता है, वर्ब रिमेन्स फर्स्ट फॉर्म, वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म। और यहाँ भी जब डिड लग जाएगा देन वर्ब शैल रिमेन इन फर्स्ट फॉर्म ओनली। ठीक है, so this was today's class actually. Tomorrow I'll start, tomorrow कल फोर्थ लेक्चर होगा ना हमारा। हाँ, तो tomorrow we will cover preposition entirely thoroughly, हम preposition कवर करेंगे and by the fifth day we will cover preposition, article and all the tenses. ठीक है, this is how we are proceeding and if you have any query let me know, I'll answer. Okay, thank you so much, thank you for joining. This is going to wind up the session.